اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سن 500 عیسوی جب خشک صحرا کے درمیان ایک عظیم شہر آباد تھا جس کا نام تھا مکہ۔ یہاں کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا لوگ حضرت ابراہیم کے اس دین سے پھرنے لگے۔ تبھی ایک شخص جس کا نام عمر تھا مکہ آیا اور اس نے شام سے کچھ بت لا کر کعبہ میں رکھ دیے۔ پھر بر قبیلے نے اپنا ایک بت چن لیا اور یوں کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ کسی کا نام بوبل تھا، کسی کا لات، کسی کا منات اور کسی کا نام غزی تھا۔ یوں ایک نئے دین کی شروعات ہوئی۔ ان لوگوں میں شراب عام ہو گئی، جوا کھیلا جاتا، عورتوں کے حقوق چھینے جاتے اور انہیں جائیداد کی طرح سمجھا جاتا، کمزوروں اور غریبوں کو غلام بنایا جاتا، چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بیٹی سے گھر میں غربت اور بدنامی آتی ہے۔ ان کے آس پاس اس دور کی دو عظیم سپر پاورز آباد تھیں، رومن ایمپائر جو عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اور پرشین ایمپائر جو آگ کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں میں شاعری عام تھی اور وہ شاعروں کو مشہور ہستیوں کی طرح عزت دیتے تھے۔ یہ لوگ اندھیروں میں ڈوب چکے تھے۔ اللہ نے عرب کو اسلام کے لیے کیوں چنا؟ اور ان اندھیروں کو ایک روشنی کی ضرورت تھی۔ پھر وہ روشنی ایک نبی کی شکل میں آئی جن کا نام تھا۔ جب سیدہ امنہ نے سب سے عظیم بیٹے کو جنم دیا تو ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے کئی کلومیٹر دور شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ اس وقت پرشین ایمپائر کے محل پل گئے اور ان کے مندر میں وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ یہودیوں کے علماء نے آسمان میں ایک ستارہ دیکھا اور کعبہ کے سارے بت گر گئے۔ نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب نبی کو دیکھا تو انہیں لے کر کعبہ میں گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب قریش نے پوچھا کہ اپنے پوتے کا نام کیا رکھو گے تو انہوں نے کہا محمد۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا نام ہے، یہ تو کبھی سنا نہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا میرے اس پوتے کی تعریف آسمانوں اور زمینوں میں کی جائے گی، کیونکہ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ کئی وجوبات تھیں۔ عرب رومن اور پرشین ایمپائر کی حکومت سے آزاد تھا، اس لیے نبی لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے تھے۔ مکہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع تھا، ایک مرکزی مقام۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ لمبی لمبی شاعری یاد رکھتے تھے۔ ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی، اس لیے یہ قرآن کو اچھی طرح یاد رکھ سکتے تھے۔ قرآن کی عربی زبان کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ یہ لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ نبی کی ولادت کے 7 دن بعد جناب عبد المطلب نے عقیقہ کیا۔ نبی کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے بے وفات پا چکے تھے۔ اس زمانے میں مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو بدوی قبائل کی عورتوں کو پرورش کے لیے دے دیتے تھے۔ ایک دن حلیمہ نامی ایک غریب بدوی عورت جس کا اونٹ بھی کمزور تھا نے اپنے شوہر سے کہا ہمیں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے۔ جیسے ہی وہ نبی کو لے کر واپس جانے لگی ان کا گدھا اچانک تیز ہو گیا جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ ان کے علاقے کی ساری بکریاں بہر بہر کر دودھ دینے لگی اور ہر طرف خوشحالی پھیل گئی۔ حلیمہ نے نبی کی 4 سال پرورش کی۔ ایک دن جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ کھولا اور دل کو زمزم سے دھو کر واپس رک کے دیا۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر دادا عبد المطلب نے پرورش کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی چل بسے۔ اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ ایک سفر کے دوران ایک عیسائی راہب نے جناب ابو طالب سے کہا تمہارے بھانجے میں نبوت کی نشانیاں موجود ہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ مکہ میں آپ کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ کو الامین، قابل اعتماد کہتے تھے۔ اسی ایمانداری سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ نے آپ کو اپنا کاروبار سنبھالنے کے لیے رکھا اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر ایک دن سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں آئیں اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جن کا نام تھا علی۔
इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के कुछ अरसा बाद जनाब अबू तालिब के हालात तंग हो गए। नबी ने उनकी मदद करना चाही और इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और उनकी परवरिश करने लगे। आप अपने हाथों से इमाम अली को खाना खिलाते और उन्हें सीने से लगाते। यूं बचपन ही से वो नबी के बहुत करीब हो गए। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो आपका इस दुनिया से दिल उठा गया और आप गारे हिरा में जाकर इबादत करने लगे। फिर एक दिन आप पर पहली वही नाजिल हुई, इक़रा, पढ़ो। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नबी को इबादत करते देखा और पूछा। आपने फरमाया, मेरा अल्लाह एक है और मैं उसका नबी हूं, मेरा दीन अपना लो। और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए नबी, अपने रिश्तेदारों को खबरदार करो। नबी ने अपने कबीले बनु बाशम को बुलाया, जिनमें अबू तालिब, हजरत हमजा, हजरत अब्बास और अबू लहब शामिल थे। 40 अफराद। आपने सिर्फ एक शख्स के खाने जितना खाना रखा, जिसे उन 40 लोगों ने खाया, और फिर भी वो खत्म ना हुआ। अगले दिन आपने दोबारा सबको बुलाया और पूछा, तुम में कौन मेरा साथ देगा? कोई न बोला। तभी एक 7 साला बच्चा खड़ा हुआ और बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं आपका साथ दूंगा। नबी ने अपना बाता इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर रखा और फरमाया, ये है मेरे भाई। फिर नबी कूहे सफा पर चढ़े और बुलंद आवाज से निदा दी। कुरैश के सारे कबीले दौड़े आए। आपने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या तुम मानोगे? लोगों ने कहा, हां, आपने हमेशा सच कहा है। आपने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। अबू लहब गुस्से से बोला, तुम हलाक हो जाओ, क्या हमें यह कहने के लिए बुलाया था? सबसे पहले हजरत खदीजा और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल किया। फिर अबू जर गिफारी, हजरत अबू बकर, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें ज्यादातर गुलाम और गरीब लोग थे। इब्तिदा में सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम ने नबी को बहुत सपोर्ट किया, अपनी दौलत से मदद की, नए मुसलमानों को आजाद करवाते। जनाब अबू तालिब भी नबी के साथ खड़े रहे और कुरैश से हिफाजत करते। कुरैश ने अबू तालिब को कहा, मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, जो चाहो मिलेगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अबू जहल ने मुसलमानों को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। किसी को गर्म रीत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रखा जाता, किसी को मार मार कर शहीद किया जाता। कुरैश ने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि इस्लाम बुत परस्ती से रोकता था और काबा में 360 बुत थे, जिनकी पूजा के लिए पूरे अरब से लोग मक्का आते, जिससे उनका कारोबार चलता था। मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे थे। नबी ने हुक्म दिया, तुम सब हबशा चले जाओ। वहां का बादशाह नज्जाशी है, जिसकी हुकूमत में कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। पहले 16 मुसलमान गए, फिर और 80, जिनमें हजरत अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु भी थे। कुरैश को डर लगा कि कहीं मुसलमान हबशा से भी मदद न हासिल कर लें। उन्होंने उमर बिन आस को कीमती तहाइफ देकर नज्जाशी के दरबार में भेजा। नज्जाशी ने मुसलमानों को अपने महल में बुलाया तो उन्होंने जाफर बिन अबी तालिब को अपनी तरफ से पेश किया। जाफर बिन अबी तालिब ने जबरदस्त तकरीर की, ऐ बादशाह, हम जहालत में पड़े लोग थे जो बुतों की पूजा करते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। फिर अल्लाह ने हमारे पास अपना नबी भेजा, जिसने हमें सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ सिखाया। कुरैश ने हमें मारना शुरू किया तो हम तुम्हारी जमीन पर आ गए। नज्जाशी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई वही है जो सुना सको? जाफर ने सूरह मरियम सुनाई। सुनते ही दरबार के तमाम बुश्प रोने लगे। नज्जाशी ने कहा, जो तुमने अभी सुनाया वो वहीं से आई है जहां से ईसा अपनी किताब लाए थे। मैं किसी सूरत उन मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जब कुरैश ने देखा कि लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने एक मुआहिदा लिखा जिसमें 4 शराइत थीं। आज के बाद कोई बनु बाशम से शादी नहीं करेगा, कोई उन्हें कुछ बेचे या खरीदेगा नहीं, कोई उनसे बात नहीं करेगा, और अगर ये सब खत्म करना है
तो मोहम्मद को हवाले करना होगा। ये कागज काबा में लटका दिया गया। बनु हाशिम को एक तंग वादी में भेज दिया गया। वो किसी से तिजारत नहीं कर सकते थे। भूख की वजह से बच्चों के रोने की आवाजें रात को गूंजती। नबी ने सैयदा खदीजा, जनाबे अबू तालिब और इमाम अली के साथ 3 साल ये हालात गुजारे। 3 साल बाद नबी ने जनाबे अबू तालिब से कहा कि अल्लाह के हुक्म से कीड़ों ने वो कागज खा लिया है। जनाबे अबू तालिब फौरन कुरैश के पास गए। जब कुरैश ने काबा में देखा तो वाकई कागज के अल्फाज कीड़ों ने खा लिए थे और सिर्फ बिस्मिल्लाहुम्मा लिखा था। ये देखकर कुरैश के कई लोग सामने आए और बाइकॉट खत्म कर दिया गया। बाइकॉट खत्म होने के बाद सैयदा खदीजा वफात पा गईं। अभी ये गम लगा ही था कि उसी साल जनाबे अबू तालिब भी वफात पा गए। एक ही साल में आपने दोनों को खो दिया। नबी ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। कुरैश नबी का मजाक उड़ाते, आपको शायर और जादूगर कहते। जब आप नमाज पढ़ते तो सर पर ऊंट की ओझरी रखा देते, कचरा फेंकते, कपड़े से गर्दन जकड़ते, लेकिन नबी सब्र करते रहते। एक रात कुरैश ने कहा, अगर तुम नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। नबी ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए और फिर वापस जुड़ गए। ये देखकर वो हैरान रह गए। मुसाफिरों ने भी तस्दीक की कि उन्होंने भी चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे, लेकिन ये लोग फिर भी ईमान न लाए। नबी ने मक्का के अलावा कहीं और दीन की दावत देने का सोचा, क्योंकि मक्का के लोग आपकी जान के दुश्मन बन चुके थे। आप हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ की तरफ निकले, जो एक अमीर शहर था। वहां आपने सकीफ कबीले के बड़े सरदारों से मुलाकात की और उन्हें दीन की दावत दी, लेकिन उन्होंने उल्टा मजाक उड़ाया और जाने लगे तो गली के बच्चों और गुलामों को नबी पर पत्थर मारने का हुक्म दिया। बच्चों ने पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपके मुबारक पांव जख्मी हो गए और जूते खून से भर गए। हजरत ज़ैद भी शदीद जख्मी हो गए। नबी शहर के बाहर एक बाग में पहुंचे और दरख्त के नीचे बैठ गए। इस शदीद जख्मी हालत में भी आपके ईमान का आलम यह था कि दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे से राजी है तो मुझे इस दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं उन लोगों को पहाड़ों के दरमियान कुचल दूंगा। नबी ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में से लोग अल्लाह के दीन को कबूल करेंगे। इसके बाद नबी व आपस मक्का आ गए और फिर अल्लाह ने आपको मेराज करवाई। हज़रत जिब्रील आए और आपको बर्राक पर बिठाया और यरूशलेम में मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए। मस्जिद अक्सा पहुंचने पर आज तक आए तमाम अंबिया आपके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हज़रत इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम। नबी ने इमामत की और तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आप बुर्राक पर सवार हुए और सीधा आसमानों की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत याह्या से, तीसरे पर हज़रत यूसुफ से। नबी ने फरमाया, जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी खूबसूरती देखे कर हैरान रह गया। अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया की अधी खूबसूरती दी है। चौथे पर हज़रत इदरीस से, पांचवें पर हज़रत बारून से, छठे पर हज़रत मूसा से और सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद सामने सिदरतुल मुंतहा था, नूर से घिरा हुआ एक ऐसा मकाम जिसका इंसान के पास कोई इल्म नहीं। हज़रत जिब्रील ने कहा, अगर मैं एक कदम आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन हमारे नबी आगे बढ़े। जहां जिब्रील की हुदूद ख़त्म होती हैं, वहां से हमारे नबी की हुदूद शुरू होती हैं। आपने अपने रब से बराह रास्त बात की और अल्लाह ने आपको एक तोहफा दिया, नमाज। पहले 50 नमाजें फ़र्ज़ की। मेराज के बाद नबी वापस मक्का आए और लोगों को बताया कि वो अभी कुछ देर पहले आसमानों का सफ़र करके आए हैं। ये सुनकर वो हंसने लगे। तभी अल्लाह ने नबी की आंखों के सामने मस्जिद अक्सा रख दी और आपने कुरैश के सवालों का जवाब दिया।
یہ دیکھ کر قریش جان گئے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ قریش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، تمہارے نبی کہتے ہیں کہ وہ آج رات آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو بے شک یہ سچ ہے۔ اس کے بعد نبی نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ قریش کو دعوت دینے کے بجائے اپنی توجہ ان قبائل کی طرف کر دی جو حج کے دنوں میں مکہ آتے تھے۔ آپ مکہ کے باہر انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور کئی لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قریش اور زیادہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے نبی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔